اب تک ہم اپنی بات خدا کو سنا رہے تھے، خدا کی تعریف کر رہے تھے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی باتیں سناتے ہیں خدا کو، اور جب پرستش کرتے ہیں تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی کے دوران خدا اپنے لوگوں کے درمیان تخت لگاتا ہے، اور پھر جب خدا کے خادم کلام سناتے ہیں تو پھر خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اور یقیناً اس وقت خدا ہم سے بات کرنے کو ہے، اور ہمیں بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ خدا کی بات کو سننا ہے۔ اور آج خدا کے کلام کو، خدا کی بات کو پیش کرنے کے لیے خدا کے بندہ بیٹے ہیرسن ہمارے درمیان ہیں، جو آج خدا کے کلام کو، خدا کی بات کو ہم تک پہنچائیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں انسان کا نہیں، خداوند کا آنر ہے، خداوند کی عزت ہے، خداوند کا جلال ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کلام کو سننا چاہتے ہیں؟ غور کے ساتھ سننا ہے، اور ایک ایک بات جو آپ سے کہی جائے گی تو خداوند کا روح آپ سے بات کرے گا، اور آپ اس بات کو اگر اپنے اندر اگر ریسیو کریں گے تو آپ زندگی کو حاصل کریں گے، کیونکہ خداوند کا کلام کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی، عام زندگی نہیں ہے جو انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، ایسی زندگی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا کلام کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تو ہمیں آج زندگی کو ریسیو کرنا ہے، یعنی کہ خدا کے کلام کو ریسیو کرنا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے کچھ دیر کے لیے، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، کلام کو مانگیں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند آج کا کلام میرے لیے ہو، اے خداوند مجھ سے بات کیجیے گا۔ سب اپنے لیے دعا کریں، کہیں خداوند مجھ سے بات کریں آج کلام کے وسیلہ سے۔ اے خداوند میری وہ پریشانی کو آج کلام کے ذریعہ سے دور کر دیجیے گا۔ اے خداوند وہ ساری ٹینشن کو خداوند مجھ سے دور کر دیجیے گا۔ اے خداوند میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو خداوند آج اپنے کلام کے ذریعہ اے خداوند چینج ہو جاؤں، اے خداوند میری زندگی تبدیل ہو جائے، تاکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے والا ہو سکوں۔ اے خداوند اگر میں خداوند بھٹکا ہوا ہوں تو اے خداوند آج آپ کے کلام کو جب میں سنوں تو اے خداوند میں صحیح ٹریک پر آ جاؤں، اے خداوند اس راہ پر آ جاؤں جو زندگی کو جاتی ہے۔ اور اے خداوند آپ نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، تو خداوند میں آج آپ کو اپنانے والا ہو سکوں، میں اپنی زبان سے خداوند اقرار کروں کہ خداوند آپ ہی میرے نجات دہندہ ہیں، آپ ہی بچانے والے اور چھڑانے والے ہیں۔ اے خداوند آج ہمیں کثرت کے ساتھ استعمال کریں، اے خداوند سننے والے کان عطا کریں، تاکہ خداوند جو باتیں آج ہم سنیں اے خداوند ہمارے دلوں میں بس جائیں، تاکہ خداوند ہمیشہ اے خداوند اس کلام کو یاد رکھتے ہوئے آپ کے ڈر اور خوف میں زندگی کو بسر کرنے والے ہو سکے۔ یسوع باپ اے خداوند اپنے فضل کو، اپنے رحم کو جاری کرے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ اے خداوند میں دل لگا کر خداوند آپ کی بات کو سنوں گا، کہیں خداوند میں دل لگا کر آپ کی بات کو سنوں گا، اور اے خداوند میرا دل اور ذہن اور خیالات خداوند آپ کے کنٹرول میں آ جائے، تاکہ کوئی خداوند دنیا کی سوچ نہ آئے، تاکہ خداوند میں پوری برکت کو حاصل کرنے والا ہو سکوں، اے خداوند میں 100 گنا پھل کو حاصل کروں۔ تو مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ تو آپ سب خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ خداوند کے گھر میں آئے ہیں۔ تو خداوند کے گھر میں ہم کیوں آتے ہیں؟ خداوند کے گھر میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں زندگی کو گزارنے کا طور اور طریقہ پتہ چلے کہ اصول کیا ہے زندگی کو گزارنے کا۔ ہم خدا کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ زندگی کو بسر کرنا کس طرح سے، یہ سیکھنے کے لیے ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ 6 دن ہم دنیا میں گھوم رہے ہوتے، کہیں جا رہے ہیں، کہیں پر آ رہے ہیں، لیکن جو ایک دن مقرر کیا ہے یہاں پر جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ سے دور رہنا، تو اس 6 دن میں ہم وہ چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں جو ایک دن میں ہم سیکھ کر جاتے ہیں۔ جو اتوار والے دن یعنی کہ سنڈے ہم چرچ میٹنگ میں آتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے گالی نہیں دینی۔ اگر ہم نے یہ بات سیکھی ہے تو ہم وہ 6 دن میں اپلائی کریں گے۔ تو چرچ وہ جگہ ہے
और ये परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है कि कोई कहे कि मैं कामिल होकर फिर आऊं चर्च के अंदर। तो ये ना कहे कि अब मैं तो बहुत गुनाहगार हूं तो मैं कैसे खुदा की हजूरी में आ सकता हूं। तो चर्च बना ही उन लोगों के लिए है जो इनपरफेक्ट लोग होते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते, ताकि वो खुदा की हजूरी में आके परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। जो लोग दूर हैं वो ये ना सोचे कि मैं खुदा की हजूरी में नहीं, बल्कि खुदा आया ही उन लोगों के लिए है। इन लोगों के लिए खुदा आया है जो लोग गुनाहगार थे, मतलब कि परफेक्ट नहीं थे। फिर खुदावंद ने कहा कामिल बनो, क्योंकि अब तुम्हें कामिल करने वाला मिल चुका है। हालेलुया। हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, पहले दिन का है। पहला दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करते यानी कि कबूल करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, पहला दिन नए सिरे से जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारा जो पहला दिन होता है, तो पहले दिन के बाद जो हमारी जिंदगी होती है और उससे पहले वाली लाइफ, मतलब कि पुरानी लाइफ कैसी होती है, और जिस दिन हम खुदावंद को कबूल करके अपने पहले दिन का आगाज करते हैं तो कैसी जिंदगी होती है। तो आज कौन से दिन के बारे में सीख रहे हैं? पहले दिन के बारे में। तो पहले दिन के लिए आयत बड़ी खूबसूरत है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी एक आयत से मैं तिलावत करूंगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। कितनी चीजों को खुदा ने बनाया है? दो चीजों को बनाया है। आसमान को भी बनाया है, जमीन को भी बनाया है। लेकिन लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और उसके जो गहराव है उसके ऊपर क्या है? अंधेरा है। और लिखा है खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। यहाँ पर दो चीजें हमें नजर आती हैं। पहली चीज हमें नजर आती है अंधेरा, और दूसरी चीज खुदा ने क्या की है? रोशनी। अंधेरा किस चीज को जाहिर करता है? मौत को जाहिर करता है, रुकावट को जाहिर करता है, मुश्किलात को जाहिर करता है। लेकिन रोशनी किस चीज को जाहिर करती है? जिंदगी को जाहिर करती है। रोशनी किस चीज को जाहिर करती है? जिंदगी को। तो जो यहाँ पर अल्फाज यूज हुआ है, अंधेरा, जो गहराव के ऊपर अंधेरा है, जो डार्कनेस है, तो इसको अगर असल जुबान में पढ़ें, इब्रानी में जो वर्ड यूज हुआ है कोशा लिखा हुआ है वहां पर, और जिसका मतलब होता है मौत, कि वहां पर मौत थी, जमीन पर मौत थी, वहां पर रुकावट थी, डिस्ट्रैक्शन लिखी हुई है, वहां पर डर था, खौफ था, दुख थे, दर्द थे। खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, लेकिन जमीन के ऊपर मौत थी, रुकावट थी, परेशानी थी। तो उसको दूर करने के लिए खुदा ने क्या की है? रोशनी की है। अंधेरे को खत्म करने के लिए खुदा ने क्या की है? रोशनी की है। तो रोशनी खुदा ने किस तरह से की है? क्या सूरज की रोशनी नहीं होती? सूरज की भी रोशनी है, चांद सितारों की भी रोशनी है। तो खुदा ने ये क्यों नहीं कहा कि सूरज बन जाए तो रोशनी हो? सोचने वाली बात है। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, ये नहीं कहा कि किसके जरिया से रोशनी हो। खुदा ने ये नहीं कहा कि सूरज बन जाए ताकि सूरज के वसीला से रोशनी हो, ताकि जमीन जो है सूरज के वसीला से रोशन की जाए। क्योंकि ये जो अंधेरा था, इसको खत्म करने के लिए एक ऐसी रोशनी की जरूरत थी जिसमें जिंदगी होती, जिसमें ये काबिलियत होती कि वो मौत को, वो दुख को, वो दर्द को, वो परेशानी को दूर कर सके। इसका मतलब ये कि सूरज के अंदर ये एबिलिटी नहीं है, उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो जिंदगी को पैदा कर सके, या जिंदगी मौत को हरा कर जिंदगी वहां पर करे। सूरज के अंदर ये काबिलियत नहीं थी, इसलिए खुदा ने सूरज को नहीं वहां पर बनाया। खुदा ने चांद सितारों को नहीं बनाया, मतलब कि उनकी रोशनियों से हमें कोई, जमीन को कोई फायदा नहीं था। सूरज और चांद और सितारों से कोई फायदा नहीं था उनकी रोशनियों से, क्योंकि जो अंधेरा छाया हुआ था वो मौत का अंधेरा था। तो उसके लिए हमें एक ऐसी रोशनी चाहिए थी जो मौत को खत्म करती। कौन सी रोशनी चाहिए थी? जिंदगी की रोशनी चाहिए थी जो मौत को खत्म करती। तो खुदा ने किसके वसीला से रोशनी की? लिखा है खुदा ने कहा। खुदा ने ये नहीं कि सूरज हो जाए, खुदा ने कहा, खुदा ने अपने कलाम के वसीला से रोशनी की है। हालेलुया। खुदा ने अपने कलाम को भेजकर रोशनी की है। खुदा
भेज कर नहीं, वसीला सूरज नहीं बन रहा, वसीला चांद नहीं बन रहा, सितारे नहीं बन रहे, वसीला कलाम बन रहा है। खुदा ने अपने कलाम से रोशनी की है, अपने कलाम को भेजकर मौत को खत्म किया है, उस दर्द को, उस परेशानी को, उस दुखों को दूर किया है। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से। खुदा ने कहा, यानी कि खुदा ने कलाम किया, कलाम डिलीवर हुआ, कलाम गया और कलाम ने क्या कर दी है? वहां पर जिंदगी कर दी है, रोशनी कर दी है। और जब वो जिंदगी हुई है तो जो अंधेरा है वो रहा है वहां पर। लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई, यानी कि खुदा ने जिंदगी की और जिंदगी हो गई। अंधेरे का नाम नहीं आया दोबारा, मौत नहीं रही दोबारा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है? कि रोशनी, जिंदगी को कबूल किया है जमीन ने। तो यही कंडीशन थी अब आदम की। अब गौर से सबने सुनना है, आदम की कंडीशन जो इब्तिदा में जमीन की कंडीशन है, सेम यही कंडीशन है। जब उसने गुनाह कर दिया, वो वीरान हो चुका था, वो सुनसान हो चुका था और उसके गहराव के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। किस वजह से? गुनाह के सबब से। आदम की जिंदगी के ऊपर अब अंधेरा था। क्यों अंधेरा था? गुनाह के सबब से अंधेरा था। तो आदम को अभी किस रोशनी की जरूरत थी? उसको चांद सितारों की रोशनी की या सूरज की जरूरत नहीं थी, उसको एक ऐसी हकीकी रोशनी की जरूरत थी जो उसके अंदर से मौत को दूर कर देती। आदम को किस रोशनी की जरूरत थी? एक ऐसी लाइट की जरूरत थी जो मौत को क्या कर देती? दूर कर देती। तो जितने भी इंसान पैदा हो रहे हैं वो सारे अब क्या थे? अंधेरे के अंदर हैं। आदम से जो जो पैदा होता जा रहा है, पैदा हो रहा है, सब पैदा हो रहे हैं, तो वो सब क्या थे? अंधेरे के अंदर हैं। बज़ाहिर को नजर तो आ रहे हैं, उन पर सूरज की रोशनी भी चमक रही है, चांद भी है, सितारे भी है, सब कुछ है, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। वो रोशन तो कर रहे हैं लेकिन जिंदगी नहीं दे रहे। तो लिखा है कि खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम किया और कहा गया है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। ये वही कलाम है जिसने इब्तिदा में जमीन को रोशन किया था। तो खुदा ने, और जब आदम के अंदर गुनाह गया था तो खुदा ने वही कलाम भेजा, क्योंकि उस कलाम में जिंदगी थी, उस कलाम में जिंदगी थी। वो जिंदगी के बगैर वाला कलाम नहीं था कि अगर कहें कि वो कलाम तो है लेकिन उसमें जिंदगी नहीं। 3 आयत को 4 आयत को पढ़ेंगे जब हम वहां पर, तो वहां पर लिखा है कि वो कलाम, उस कलाम में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। मतलब कि रोशनी कहां पर थी? उस कलाम के अंदर, और उस कलाम के अंदर क्या थी? जिंदगी थी। तो जब वो जिंदगी आई है, जैसे जमीन के ऊपर खुदा ने अपने कलाम को भेजकर रोशन किया, उसको जिंदगी दे दी है, इसी तरह से जब आदम गुनाह के अंदर था तो आदम के लिए खुदा ने किसी और को नहीं भेजा, किसी और मखलूक को नहीं भेजा, बल्कि खुदा ने अपने कलाम को ही मुजस्सम करके, यानी कि जिस्म देकर भेज दिया ताकि इंसान उसे कबूल करे, उस रोशनी को कबूल करे, उसको कबूल करे तो फिर क्या हो जाएगा? वो रोशन हो जाएगा, वो नूर में आ जाएगा। क्या लिखा है? तो जमीन रोशन हो गई। अब वो जो जमीन है और जो आदम है वो सेम है, क्योंकि उसी मिट्टी से आदम को लिया है खुदा। जो मिट्टी है वो आदम ही को जाहिर करती है, क्योंकि आदम क्या है? मिट्टी है। तो जरूरी था कि वही रोशनी उस पर पड़े, कोई और रोशनी नहीं बल्कि वही रोशनी पड़े जिसने जमीन को रोशन किया था। तो वो रोशनी कौन थी? वो खुदावंद यीशु मसीह था। वो जो कलाम हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह था। तो अगर हमारी जिंदगियों में दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, परेशानी है, तो हमें किसी और की जरूरत नहीं बल्कि हमें उसी रोशनी की जरूरत होती है। हालेलुया। हमें उसी रोशनी की जरूरत होती है, क्योंकि वो जिंदगी की रोशनी, जब वो एंटर हो जाती है हमारी जिंदगी के अंदर तो परेशानी जाती है, तो मौत जाती है हमारे अंदर। तो खुदावंद यीशु मसीह वो हकीकी नूर बनकर आए हमारी जिंदगियों के लिए, हकीकी नूर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब आए हैं और जमीन ने क्या किया है? कबूल किया है, इसलिए जमीन रोशन है। तो लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया। अब हम सब अलग अलग जमीन, यानी कि अलग अलग मिट्टी है, तो जितनी मिट्टी ने कबूल किया है वो सब रोशन हो गई है। यहाँ पर पूरी जमीन ने कबूल किया है, रोशन हुई है। और लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, यानी कि कुछ ने नहीं किया। तो आज अगर हमने कबूल किया है तो हम कहां पर है? रोशनी के अंदर है।
हम कहां पर हैं? रोशनी के अंदर हैं। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी नूर है, मतलब कि ट्रू लाइट, सच्ची रोशनी। इंग्लिश में लिखा है ट्रू लाइट, यानी कि सच्ची रोशनी। इसका मतलब अगर सच है तो झूठ भी है। सही, सच है तो झूठ भी है, गलत रोशनियां भी हैं और सच्ची रोशनी भी है। इंसान समझता है, अब देखिए जैसे सूरज है वो रोशनी तो दे रहा है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हमें, वो रोशन कर रहा है जमीन को लेकिन उससे जिंदगी नहीं मिल रही। रोशन तो कर रहा है लेकिन जिंदगी नहीं मिल रही। इसी तरह से वो लोग जो दूसरी रोशनियों को समझ रहे हैं कि हमें रोशनी मिल रही है, हम रोशन नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में उनमें जिंदगी नहीं है। जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जिंदगी कहां पर है? खुदावंद यीशु मसीह के पास, क्योंकि कहा है खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हकीकी नूर है, सच्ची रोशनी खुदावंद यीशु मसीह है। किसी और के बारे में नहीं कहा कि 2 हकीकी नूर हैं, 3 हकीकी नूर हैं। कहा है हकीकी नूर वही है, खुदावंद यीशु मसीह। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह को मैंने कबूल कर लिया है तो अब मैं क्या हो गया? नूर का फर्जंद बन गया हूं। अब मैं नूर का फर्जंद बन गया हूं। तो अब देखें, जमीन ने क्या किया है? रोशनी को कबूल किया है। इंसान ने रोशनी को कबूल किया है। जमीन कौन है? इंसान है। इंसान को हो, जमीन को, क्योंकि सेम है, क्योंकि उसी मिट्टी से खुदा ने आदम को बनाया है। अब आपके सामने एक मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखें, ये था क्या? ये जमीन है। ये कहां पर थी? नीचे थी। इसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ है। अब देखिए जैसे इसके ऊपर मैंने रखा है तो इसके ऊपर अंधेरा आ गया। तो ये ऊपर पानी ही पानी है, इसके ऊपर क्या था? पानी ही पानी है। तो जैसे ही नूर चमका है जमीन के ऊपर तो लिखा है कि खुदा ने पानी को एक तरफ किया और जमीन नजर आई। तो ये थी जमीन की पैदाइश, यानी कि आदम की पहली पैदाइश। आदम को खुदा ने कहां से निकाला था? पानी को हटाकर, और ये क्या? जमीन को निकाला और आदम को पैदा किया, खुदा ने बनाया। ऐसे ही खुदा ने बनाया है ना। अगर पानी ऊपर रहता तो क्या आदम बन सकता था? तो जरूरी है कि जब रोशनी आ गई है, जिंदगी आ गई है जमीन के ऊपर, तो जरूरी है कि पानी हटाया जाए और जमीन बाहर आए। तो जब आदम ने गुनाह किया है तो आदम बज़ाहिर नजर तो आ रहा है हमें कि जिंदा है, लेकिन खुदा की तरफ से वो मर चुका था। तो जो मरा हुआ इंसान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये खाक है, ये मट्टी है। तो आदम नजर तो आ रहा है लेकिन वो मट्टी था, उसके अंदर जिंदगी नहीं थी। अब उसको जरूरत थी अभी जिंदगी की। क्या जरूरत थी इंसान को? जिंदगी की जरूरत थी। और वो इस तरह से था, ऊपर पानी है और नीचे जमीन है, वो इसी कंडीशन के अंदर है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं तो जितनी जमीन ने कबूल किया है उन्हें जरूरत है कि पानी में से वो बाहर आती। जब निकोदेमुस आया है खुदावंद यीशु मसीह के पास, खुदावंद यीशु मसीह से बातें कर रहा है, 3 बाब के अंदर हम पढ़ते हैं यूहन्ना के इंजील में, तो वहां पर लिखा है निकोदेमुस एक यहूदियों का सरदार था। वो आता है खुदावंद यीशु मसीह के पास, बातें करता है खुदावंद यीशु मसीह से। वो कहता है कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से क्या है? उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो काम तुझसे जाहिर होते हैं, जो तू करता है काम, वो आम शख्स नहीं कर सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 आयत में क्या कहा? कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से, मतलब कि जरूरी है कि नए सिरे से जब तक कोई पैदा ना हो खुदा की बादशाही में एंटर नहीं कर सकता। अब आदम जो है वो पैदा तो हो चुका था, लेकिन क्या था? अब वो मट्टी है और मट्टी के ऊपर क्या छाया हुआ था? अंधेरा छाया हुआ था। तो जरूरी है कि वो दोबारा से पैदा हो, लेकिन निकोदेमुस नहीं समझ पाया इस बात को। निकोदेमुस ने कहा कि क्या आदमी दोबारा से बूढ़ा हो जाए? अब आदमी बूढ़ा हो और फिर अपनी माँ की कोख में जाए और फिर से पैदा हो, क्योंकि नए सिरे से पैदा होने का मतलब होता है दोबारा से पैदा होना, बोर्न अगेन, मतलब कि दोबारा से उस चीज को दोहराना, कि दोबारा से पैदा हो जाना। तो उसने कहा कि मैं अब बूढ़ा होऊंगा, फिर अपनी माँ की कोख में जाऊंगा और फिर पैदा होऊंगा, तो फिर मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा। तो खुदावंद ने कहा पानी और रूह से जब तक कोई पैदा ना हो। तो क्यों जरूरत है हमें पानी से पैदा होने की? क्यों जरूरत है हमें रूह से पैदा होने की?
पानी ही से क्यों पैदा होना है? इंसान पानी से तो नहीं ना पैदा होता, माँ के जरिया से पैदा होता है। जब शादी होती है तो माँ के जरिया से पैदा होता है, सबको पता है। निकोदेमुस को भी पता था कि वो अपनी माँ के बतन में से पैदा हुआ है, माँ की कोख से पैदा हुआ है। तो फिर मुझे पानी से क्यों पैदा होना है? क्योंकि अगर मैंने दोबारा से पैदा होना है तो मुझे उसी हालत में जाना पड़ेगा जहां से मैं निकला हूं। तो खुदावन बता रहे थे कि तू वहां से नहीं निकला है, तू मिट्टी है, तेरे ऊपर पानी था, तू जमीन है, तू नीचे था, तो जरूरत है लाइफ आई है तो निकले जमीन बाहर। तो ये है असल बपतिस्मा, इसे कहते हैं नई पैदाइश। तो ये जरूरत है हमें, ये होता है असली बपतिस्मा, ये होती है असल पैदाइश। क्योंकि मिट्टी नीचे थी, अब ये पुराना सिरा हो चुका था क्योंकि आदम मर चुका था, तो जरूरत है उसे दोबारा से उसी हालत के अंदर जाए। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, किसी हौज में लें या समुद्र पर जाके लेते हैं, तो क्या होता है? हम पानी के अंदर जाते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर जाते हैं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? सेम यही हो जाती है। हम क्या है? मिट्टी है। मिट्टी अब इसके अंदर है, ऊपर पानी है, और ऊपर क्या है? खुदा का रूह जो जुम्बश कर रहा है पानी की सतह के ऊपर। तो जरूरत है कि हम इस पानी को हटाकर निकले। और लिखा है खुदा ने पानी को एक तरफ किया और क्या हुआ? जमीन बाहर आई। तो वो जमीन कौन है? वो आप और मैं जो मर चुके थे, जमीन ही थे, लेकिन जब निकले हैं बाहर तो खुदा ने हमें क्या कर दिया है? लाइफ दी है। तो ये है बपतिस्मा, कि जब हम उसी हालत के अंदर जाते हैं। हम अगर खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लें और बपतिस्मा ना लें, उस हालत के अंदर ना जाएं, तो पानी के अंदर से जब तक जमीन बाहर नहीं आएगी, क्या जमीन के ऊपर काम हो सकता है? क्या बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जमीन के ऊपर? जब तक जमीन नजर नहीं आएगी उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जरूरी है, इसलिए खुदा ने कहा जब तक, मतलब कि ये जरूरी बात हो चुकी है कि अगर तुम पैदा नहीं होगे दोबारा से तो तुम अंधेरे के अंदर ही हो। तो अंधेरा ही है ना, जब ऊपर पानी ही पानी है, जब पानी के अंदर जाते हैं तो अंधेरा ही हो जाता है कि कुछ और नजर आता है, हमें कुछ भी नहीं नजर आता। तो यही तो अंधेरा छाया हुआ था, तो उसमें से खुदा ने हमें बाहर निकाला, खुदा ने हमें बाहर निकाला है। तो अब जब हमें खुदा ने बाहर निकाल लिया है तो अब हम कहां से हैं? खुदा से। यूहन्ना का पहला खत उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो। तुम कहां से हो? खुदा से हो। कहां से हो? खुदा से हो। तो जब मैं खुदा से हूं तो फिर मेरा ताल्लुक जमीन वालों से क्या हो गया? कट गया। और लिखा है कि खुदा ने तारीकी को और दिन को, जो नूर जो चमका था, उसको क्या किया है? अलग किया है। इसको पढ़ेंगे हम 4 आयत को, पैदाइश की किताब। लिखा है और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से क्या कर दिया है? जुदा कर दिया है। अब खुदा हमें और तारीकी को, यानी कि हम वो नूर के फर्जंद हैं और हमें खुदावंद अब अलग करेगा। इसलिए खुदावंद ने कहा है कि तुम दुनिया में तो हो लेकिन दुनिया के नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब मैं बेशक दुनिया में हूं लेकिन मैं दुनिया का नहीं हूं। ये मैं अपने आप को बताता हूं कि मैं दुनिया में हूं। मैं दुनिया की तरह टेंशन नहीं ले सकता, मैं परेशानी नहीं ले सकता, मैं दुख दर्द नहीं ले सकता, मैं बीमारी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं हूं ही नहीं दुनिया, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है। खुदावंद ने कहा कि तुम हो बेशक दुनिया में, नजर तो आ रहे हो, लेकिन तुम उस दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया का नूर बने हुए हो। मत्ती की इंजील 5 बाब 14 है, तुम दुनिया का नूर। हम क्या हैं? जितने पैदा हो जाते हैं ना बपतिस्मे के तौर पर, जितने नए सिरे से पैदा होते हैं, वो दुनिया का नूर बन जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? दुनिया का नूर बन जाते हैं। अब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी कर लें। पहले दिन में हम क्या करते हैं? खुदावंद को कबूल करते हैं जब हमने बपतिस्मा लेना होता है। हमने तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और ये था हमारा पहला दिन। ये क्या था हमारा? कि पानी को हटाया गया और बाहर निकले, और अब हमारी जिंदगी अलग है। वो पुरानी जिंदगी थी, वो पुराना सिरा था।
वो पुरानी पैदाइश थी, अब हम नई पैदाइश के अंदर आ गए। वो कौन सी पैदाइश थी? पुरानी पैदाइश। लेकिन जो नई पैदाइश हुई है वो अलग है। उसमें अब हम नूर बन चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया का नूर हो गए। किसके वसीला से? उसी हकीकी जिंदा कलाम के वसीला से, जो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ना आते तो क्या हम अंधेरे से निकल सकते थे? क्या हम मौत में से बाहर आ सकते थे? तो इतना जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना और नए सिरे से पैदा होना। जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, यानी कि जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो रोशनी के, वो नूर है, और जो नहीं करते वो अंधेरे के। उनके ऊपर अभी भी मौत छाई हुई है, उनके ऊपर अभी भी वीरान, वो लोग वीरान है, वो सुनसान है, और वो वीरान और सुनसान के साथ साथ अंधेरे के अंदर भी। तो अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को अब तक कबूल नहीं किया, अगर अब तक हमने नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, अगर हम समझते हैं कि पानी का बपतिस्मा जरूरी नहीं है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा जब तक? मतलब कि ये बात जरूरी है, वरना खुदावंद ये कहते कि हो सके तो ले लेना, वरना तो रहने देना, फिर भी तुम नूर के फर्जंद होगे, फिर भी तुम बादशाही में जाओगे। खुदावंद ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, मतलब कि ये बात जरूरी है कि मिट्टी को दोबारा पानी के अंदर जाना पड़ेगा और उसे खुदा को कबूल करना पड़ेगा, उस हकीकी जिंदगी को कबूल करना पड़ेगा ताकि पानी को हटाया जाए। तो कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? कितने लोगों ने लिया है बपतिस्मा? आप सब ने बपतिस्मा लिया है तकरीबन काफी। तो जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपके पास मौका है। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो फिर उसके पास मौका नहीं होता। तो अभी आपके पास मौका है, और ये मत सोचे कि मैंने बूढ़े होके ही मरना है, मैंने 70-80 साल का होके ही मरना है। इंसान को अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता। तो आज ही मौका है हर एक इंसान के लिए कि अपनी जुबान से इकरार करे खुदावंद यीशु मसीह का, अपने गुनाहों का, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और उस पानी में से बाहर आए। तो जब तक पानी में से नहीं निकलेंगे तो जमीन के ऊपर काम नहीं होगा। तो जब हम निकलते हैं पानी में से तो ऊपर क्या था? खुदा का पाखरू जुम्बश कर रहा था, तो जमीन बाहर आई है, यानी कि इंसान बाहर आया तो पाखरू फिर मिलता है। क्या लिखा है? पतरस ने कहा कि तब सब तुम तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो फिर तुम रूहुल कुद्दस नाम में पाओगे। तो जैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो पाखरू तो ऊपर ही है, तो जैसे ही बाहर आते हैं तो रूहुल कुद्दस हमें हालेलुया। तो इस तरह से खुदावंद हमारी जिंदगी को रोशन करता है। इस तरह से खुदावंद हमारे दुखों को, दर्दों को, तकलीफों को क्या कर देता है? दूर कर देता है। अब हम दुनिया के अंदर तो हैं, लेकिन अब हम दुनिया के नहीं। क्यों नहीं है दुनिया के? क्योंकि खुदावंद ने हमें चुन लिया है। अब हम हकीकी नूर बन चुके हैं। तो अब हकीकी नूर का ये फर्ज है कि जिस तरह से उसको नूर करने वाला रोशन है, हम भी रोशन ही रहे, दोबारा अंधेरे वाले काम ना करें। अगर हम कहते हैं कि नूर के फर्जंद हैं और हम तारीकी वाले काम करें, तो फिर हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। यूहन्ना का पहला उसमें लिखा। अगर मैं कहता हूं कि मैं नूर का फर्जंद हूं और मेरे काम अंधेरे वाले हों, तो इसका मतलब मैं अपने आप से ही झूठ बोलता हूं, क्योंकि खुदा से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप को ही हम धोखा देते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का हूं, मैं खुदा से हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं, तो मेरे काम भी नजर आने चाहिए। हमें अपने उन तारीकी वाले कामों को दूर करना है। हमें उन तारीकी वाले कामों को दूर करना है। लिखा है कि खुदा ने रोशनी को तारीकी से क्या किया है? जुदा किया है। जुदा करने का मतलब है अलग किया है। रोशनी के काम अलग है, तारीकी के काम अलग हैं। तो अगर हम दोबारा से तारीकी के कामों में इन्वॉल्व हो जाएं, तो मतलब हम फिर से तारीकी के अंदर जा रहे हैं। तो ये खतरे वाली बात, खुदावंद को कबूल करके फिर से अंधेरे के अंदर जाना, दोबारा से अंधेरे के अंदर जाना, तो ये खतरे वाली बात, क्योंकि खुदा ने हमें अलग कर दिया है। अब आप लोग अलग हो, और गैर कौम वाले क्यों अलग हैं? इसलिए कि वो अंधेरे में, जितने वहां से कबूल करेंगे गैर कौम से, वो भी रोशनी में शामिल होते हैं।
जितने भी और मज़ाहिब हैं वो जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएंगे? रोशनी के अंदर। खुदा उनको भी चुन लेगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, यानी कि उसी कलाम को हमारी खातिर बख्श दिया है, ताकि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो इतना जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह हर एक जिंदगी के लिए। और लिखा हुआ है, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, पहला तसल्लीकियों उसके 5 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि हम दिन के फर्जंद हैं, तो हम तारीकी में क्यों चलें? वो तारीकी के फर्जंद हैं, हम किसके फर्जंद हैं? दिन के। और खुदा ने क्या में कहा है? दिन के फर्जंद दिन। हम दिन हैं, हम जिंदगी के अंदर हैं, हमारे अंदर जिंदगी है, क्योंकि खुदा का पाक रूह रहता है हमारे अंदर। और लिखा है खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात कहा, और शाम हुई और सुबह हुई तो पहला दिन हुआ। सब कहेंगे, तो शाम हुई तो सुबह हुई तो पहला दिन हुआ। शाम हुई सुबह हुई पहला दिन हुआ। शाम हुई सुबह हुई पहला दिन हुआ। मौत थी जिंदगी हुई पहला दिन हुआ। हम मर गए थे जिंदा हुए पहला दिन हुआ। कहां पर थे? मर गए थे जिंदा हुए पहला दिन हुआ। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो ये थी मौत थी जिंदगी हुई पहला दिन। ये था वो पहला दिन जो इब्तिदा में हमें नजर आता है। ये थी पुरानी पैदाइश और ये थी नई पैदाइश। पहली पैदाइश कैसी थी? अंधेरा छा गया, खुदावंद यीशु मसीह आए, उसी पैदाइश को दोबारा से कहा। तो जरूरी है कि हम उस पैदाइश के अंदर शामिल हों, नई पैदाइश में शामिल हों, हम पुराने ही ना बने रहें। एक बाब आपके सामने पेश करूंगा, वहां पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत निकाले मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। क्यों नहीं हुई है? सोचने वाली बात है, आप तो वही हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया था, क्या चेंज हुआ? सूरज भी वही है, कलर भी वही है, कपड़े भी वही है। जब निकलते हैं तो कौन सी पोशाक? कोई व्हाइट तो नहीं निकल आती, जो आप पहनकर जाते हैं वही निकलती है भाई। लेकिन खुदा ने हमें नया मखलूक कर दिया है। अब मैं नया हूं, मैं पुराना मखलूक नहीं हूं। मैं अब आदम से नहीं, मैं खुदा से हूं। अब मैं आदम से नहीं हूं, तो ये कहना छोड़ दे हम आदम की नस्ल हैं। मैं खुदा से हूं। जिस दिन मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं खुदा से हूं। इसलिए यूहन्ना कहता है कि बच्चों तुम खुदा से हो और उन चीजों पर गालिब आ गए हो। तो हमें अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारनी कि खुदा को कबूल करके भी हम अपनी जुबान से इकरार करते हैं नहीं मैं ते आदम दी नस्ल हां, आदम तो पैदा हुआ। जब आप दोबारा से पैदा हो गए, खुदा कहता है कि अगर हम मसीह में हैं तो हम नए मखलूक हैं। अगर मसीह में नहीं है तो फिर कहें कि मैं आदम की नस्ल हूं, फिर कहें कि मैं पुराना ही हूं। तो जब मसीह में आ गए हो तो कहो कि मैं नया हूं। जब मैं मसीह में हूं तो मैं नया मखलूक हूं। पुरानी चीजें जाती रही हैं, पुरानी तारीकी जाती रही है, अब मैं रोशनी का हूं। पहले मैं तारीकी का था, अब मैं रोशनी का हूं। खुदा ने सब कुछ नया कर दिया। किसी भी चीज को खुदा ने पुराना नहीं छोड़ा। मेरी सोचों, मेरे ख्यालों को खुदा ने नया किया, मेरी जिंदगी को खुदा ने नया कर दिया है। इसलिए लिखा है शाम हुई सुबह हुई पहला दिन हुआ। मौत थी, शाम रात को कहा जाता है, तारीकी को कहा जाता है। शाम हुई थी, मौत हो गई थी, लेकिन सुबह हुई। सुबह किसके वसीला से हुई है? अगर रोशनी ना चमकती तो शाम ही रहती, अंधेरा ही रहता। इसलिए कहा गया है पहले थी तारीकी, लेकिन जब नूर चमका है तो दिन हुआ है, रोशनी हुई तो पहला दिन हुआ। यानी कि रोशनी के सबब से पहला दिन हुआ है, मसीह के सबब से पहला दिन हुआ है, मसीह के वसीला से। तो हमें उस वसीले को अपनाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही वो वसीला है जो हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाता है। तो जो लोग उस वसीले को तरक कर देते हैं, कबूल नहीं करते, जो शक के अंदर जिंदगी गुजारते, उनके पास हमेशा की जिंदगी नहीं। हमेशा की जिंदगी उसमें जो खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा के इकलौते बेटे, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसमें हमेशा की जिंदगी।
तो अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, हम अगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आज के दिन नया दिन है हमारे लिए, नई सुबह, तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम भी उस बादशाही में शामिल हो जाएंगे। तो अगर अभी तक हमने नहीं लिया यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, तो हमें जरूरत है कि लें और नए सिरे से पैदा होकर उस बादशाही के हकदार बने। हालेलुया। और नूर के फर्जंद बने, मतलब कि हम जो लोग नहीं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते, वो तारीकी के फर्जंद। और तारीकी कौन है? इब्लीस। तो हमें किसके फर्जंद बनना है? नूर के, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह में आने के लिए नए सिरे से पैदा होना है और अपनी जुबान से इकरार करना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है और वो खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद इस खूबसूरत कलाम के सिरा से आप सबको बरकत दे।